Yes. Okay. Let us start. Actually, in the last section, we have started with this total quality management aspect, right? So, few थोड़ा सा initial portion मैंने cover किया था, and due to this improper working of my pen tab, I left certain things, right? So anyway, let us briefly we'll recap that part and we'll go with the next concept, right? So as I told, total quality management, basically it is regarded as both philosophy and technique also. You can see these various definitions I have given. This is a strategy for implementing and managing quality improvement activities on organized wide basis. मतलब total quality TQM principles and techniques, it varies across the entire organization. It is not restricted to only employees, manager. It involves all the entities of your organization, right? And it is in nowadays or in the current scenarios, it is very much essential uh, to survive in the competitive environment, and this one of the technique will ensure your organization survival in the present days or environment, competitive highly dynamic environment, you can say, right? This TQM concept is basically, if someone asks you who has initiated or originator of this TQM concept, right? So there is no exact originator of this TQM, but whatever the principles those derived in this TQM concept, right? Those are actually from the philosophies of this Deming and Juran, right? Can say अगर TQM का कोई grandfather कोई बोलेगा तो Deming and Juran are nothing but your grandfather or your TQM, you can say, ठीक है? Because such kind of questions will be there, objective question आपको exam में आने का chances होता है, who has developed this TQM, right? It is done, actually this TQM technique has begun in the late 1980s to 1986. So this era is basically known as the TQM, where it has taken a very major role in the manufacturing sector, right? And this Deming is the very key contributor to this TQM, you can say, right? And if you say on the right side, TQM का मैंने मीनिंग वहाँ पे लिखा है, right? T already stands for makeup of the whole, मतलब including each and every entities of the organism, मतलब everything. And Q stands for degree of excellence, मतलब there is no limit for the excellence that you can achieve in the product, right? It is continuously increasing, right? So it is also deals with the service. So each and every time you need to focus on improving the service, okay? So that's why the kind of excellence that you achieve, मतलब the kind of brand you create in your customer mind, so that is nothing but your quality definition, you can say. And M is stands for management, and this management is nothing but it is certain skills or acts which basically helps a manager to handle and control or direct its staff in order to achieve the common goals, that is to satisfy the customer with higher qualities of values or customer or driven values, you can say, right? And if you sum up all these three terms, you can simply you can define UKM is nothing but an act of managing whole to actual excellence, and then this excellence is nothing but in terms of either product or service, you can say, okay? And basically this technology, how it was developed, right? So if you see in the late 1970s and early 1980s, right, the developed countries of North America, Western, because this is the era where uh, you can say the World War II has begun, right? So this World War II के वजह से क्या होता है, most of the industries or most of the countries, you can say here, North America रहेगा, Western रहेगा, and most of the times this Japan's, even total quality management और quality engineering जब भी आप ये word सुनते हो तो ultimately this Japanese techniques will come into picture, because जापान में क्या हुआ था during the World War II, most of the manufacture after those bomb sports और होने के बाद क्या हुआ था, most of the technologies were disturbed, ठीक है, very badly affected, right? Then Japan turned their manufacturing sector into very new innovative ways, और industrial revolution जो भी हुआ, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट रहेगा, सिक्स सिग्मा टेक्निक्स रहेगा, वट एवर यू लर्न टूडेज, ठीक है, दिस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर वैल्यूज, लो कॉस्ट, हाई क्वालिटी, ऑल दिस टर्म्स have arrived from this Japan itself, ठीक है? So initiation has happened in the Japan, ठीक है? That's why एक last statement में यहाँ पे लिखा है, if Japan can, why can't we? Then so most of the techniques first were they developed in the Japan, then it has spread towards the entire rest of the world.
So TQM has been associated with technology transfer from the US to Japan. So this US to Japan and then back to Japan ऐसा क्यों बोला? Because these technologies were developed. After few slides we are going to learn about the different contributions of quality gurus. Right? They will come to know that most of these quality gurus or philosophers are from US states or United States से दिखा. ठीक है? But they haven't implemented these technologies in their area, right? जब वर्ल्ड वॉर टू होने के बाद जापान में ये सब क्राइसिस हुआ, राइट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिस्टर्ब हुआ, देन दे हैव इनवाइटेड सर्टन फिलोसोफर्स फ्रॉम द यूएस टू देयर जापानीज कंट्रीज. कुछ ऑर्गेनाइजेशन जापानीज का जो भी इंजीनियरिंग एसोसिएशन उन्होंने इनवाइट किया टू हेल्प देम टू गेट आउट ऑफ दिस डेंजरस थिंग्स. ठीक है, अब देन वहाँ पे उन लोगों ने जाके इम्प्लीमेंट किया. देन दे रियलाइज the kind of quality product this Japanese industry were producing. Then बाद में वो technology then again US में implement होगा, then again it spread to the rest of the world. So that is the meaning of this statement. Then popular definitions, a few definitions I have given. Most of the things, all these definitions are according to certain standards, as I already told, or some of the organizations have defined this according to their perception. Okay, but I'm not suggesting to remember all the definitions. Any one of these definitions, if you remember, that is sufficient. But still, I will go through these definitions. TQM is defined as both philosophy and a set of benchmark, right? It is philosophies and also set of rules or standards that represent the foundation of continuously improving organization. मतलब these philosophies and set of benchmarks always ensures continuous improvement in the organization if it adopts by any organization. Okay, and there are certain quantitative, मतलब these are statistical methods or these human resources are being employed to see the progress or continuous improvement in the organization, and those will at the present condition also for the future also. ठीक है, so क्योंकि आपको continuous improvement कर है तो suppose if you adopted certain technology, it doesn't mean that you have to stop there only, right? फिर से उस टेक्नोलॉजी में और क्या रिडक्शन कर सकते हो, कॉस्ट कैसे रिडक्शन कर सकते हो, और क्वालिटी क्या इंप्रूव कर सकते हो. So that is very continuous process and it takes a very long time. The second definition, if you see this, TQ is the management approach. मतलब TQM में क्या दिया? The more focus for the quality improvement is paid on your management, right? So management or managers were hold responsible for ensuring the implementation of the. मतलब the first manager has to recognize the need for TQM, then they have to implement. Because earlier for ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता था, ऑलरेडी मैंने बोला था कि दोज कस्टमर जो भी शॉप फ्लोर पे एम्प्लॉय, दोज वेर होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट क्रिएटिंग अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. ठीक है, बट नाउ डेज दिस मैनेजमेंट्स आर होल्ड रिस्पॉन्सिबल. मतलब एट द प्रोडक्ट स्टार्ट होने से पहले ही दे नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स सो दैट यू कैन एबल टू प्रोड्यूस अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. ठीक है, TQM is an integrated organizational approach. ठीक है, in delighting customers both internal and externals. Integrated मतलब it integrate all the sections, all the departments within the organization. Earlier ज़माने में क्या था, all these sections जो भी departments है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट रहेगा, HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग, वट एवर जो भी डिपार्टमेंट है, दिस दो यूज टू वर्क इन अ सेपरेट और इंडिविजुअली वर्क होता था. सो दैट्स वाई लैक ऑफ कम्युनिकेशन और कुछ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते थे. सो दैट्स वाई यू कुड एबल टू सी द डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट और सेल्स लॉस वगैरह वहाँ पे ऑब्जर्व होता था. बट दिस TQM इज बेस्ड ऑन अ इंटीग्रेटेड अप्रोच where each and every department should assist each other towards the common goal. Common goal रहेगा to identify the customer needs, मतलब what customer exactly want, उनके लिए क्या skills चाहिए, क्या product चाहिए, क्या services चाहिए, वो आपको identify करना पड़ेगा through deep market research. Then we are going to develop certain products or services to meet those needs. Okay, so that is, these needs are nothing but you can say the customer values, and satisfying those customer values is an approach of this TQM. Okay, then last TQM is a people focused management system that aims at continual increase in customer satisfaction at continual lower cost. TQM is a total system approach. Basically this last definition, it talks about involvement of all employees from the top to bottom, from the manager to the shop floor employees. You need to take a feedback, input, or any idea generation from the each and every one, every employees or every personnel of that companies. Okay, and each and everyone should work toward the quality improvement.
सो अर्लियर एक इंडिविजुअल पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नॉट ओनली मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट अ सिंगल एम्प्लॉयज और शॉप फ्लोर प्रोडक्शन फेलो जो भी है, दोज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ईच एंड एवरी इवन सेल पर्सनल इज रिस्पॉन्सिबल, इफ यू नीड टू सी द सप्लायर्स, जो भी कंपनी को जो सब पार्ट सप्लाई करता है, दो सप्लायर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दिस क्वालिटी, बिकॉज सप्लायर अगर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करेगा तो देन अल्टीमेटली यूर फाइनल प्रोडक्ट जो भी रहेगा इट इज सम डिफेक्ट और लो क्वालिटी प्रोडक्ट रहता है, राइट। सो इट इज इंटीग्रेटेड और फोकस्ड ऑन ईच एंड एवरी एम्प्लॉइज, ठीक है। इन तीनों में डेफिनेशन में ऑल दिस फोर डेफिनेशन रिफ्लेक्ट द सेम थिंग्स, आप कॉम्प्रोमाइज करके यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड। Then there are certain basic approaches to TQM, right? So TQM के ऊपर जनरली एक दो तीन क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है. What are the different principles of TQM? What are the different approaches which are used in the TQM, right? So last time ये approaches मैंने discuss किया था, but फिर भी I couldn't able to create this PPT, so that's why ये चीज़ें मैंने नहीं दिखाया था आप लोगों को, मतलब लिखा था मैंने स्क्रीन के ऊपर, ठीक है. The first one, I committed and involved management to provide long-term top to organizational support, right? So this treated as involvement of management. Management should be committed, because management is responsible for giving the resources. So they need to create a policy, set of rules, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज होता है उसके लिए इंसेंटिव्स देना, फंडिंग देना, देन ओनली जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज है दे कैन एबल टू वर्क टुवर्ड्स दैट अचीविंग दोज quality products. So that's why management committee commitment is very much essentially talks about that part. And unwavering focus on the customer both internally and externally. And major focus of this TQM is based on the customer, because customer मैंने बोला था कि कस्टमर एज पर द TQM इज बेसिकली, कस्टमर का ये मीनिंग है कि इन जनरल अगर आप देखेंगे तो कस्टमर इज एनी वन हु परचेसेस एनी प्रोडक्ट फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन और हु एक्वायर सर्टन services from your organization at some cost or price, you can say, right? But whenever it comes to the TQM, this customer is basically divided into two different or it is differentiated into two different words. One we have the internal customer and another one we have the external customers, right? So अगर ये दोनों में आप differentiate करना चाहोगे तो internal customers are those customers those are internal to the organization or within the organization and they are dependent on each other. जैसे हम लोगों को बॉडी बोलते हैं कि बॉडी में हार्ट है अपना और लीवर से, दिस आर इंटरनल टू द बॉडी. वैसे सिमिलरली कंपनी की जो इंटरनल है, मतलब बेसिकली इट कवर्स द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन द कंपनीज और एनी मैनेजर सुपरवाइजर्स दोज हु आर working in those companies. Well, these persons are closely related to that organization, and why they are called as a customer, because they are dependent on each other. Suppose if you say the different section, आपको sales, suppose let us say there is an inspection department in an organization, तो inspection department का लिए क्या चाहिए, उनके लिए product चाहिए, manufactured product होना चाहिए, so that they can do the inspection with the available tools, right? But if production department का जो भी बंदा है, if he does not submit your product on the right time पे submit नहीं किया, produce नहीं किया, तो then ultimately it delays in the subsequent supply chain management process, ठीक है. So that's why for that inspection department के लिए जो production department का product रहता है, that act as a customers, ठीक है. So मतलब they are mutually dependent on each other, they have to work, they are not actually they are not buying anything, right? जो already they are actually adding वैल्यूज टू द प्रोडक्ट. ईच एंड इंस्पेक्शन में कुछ वैल्यू ऐड होता है, प्रोडक्शन में कुछ वैल्यूज ऐड होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ चीज़ें वहाँ पे ऐड होता है, मतलब कुछ डिज़ाइन, कुछ फीचर्स दैट वी आर कंटिन्यूसली एडिंग टू द प्रोडक्ट, राइट? सो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, इवन सेल्स इज एडिंग वैल्यूज टू द प्रोडक्ट. कैसे वैल्यूज ऐड करेगा? बाय इंश्योरिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सेल्स, ठीक है, बाय प्रॉपर मार्केटिंग. सो दोज ऑल कस्टमर्स आर, और उनका जो एक्टिविटीज़ है दोज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड दे शुड असिस्ट देमसेल्स in order to ensure the objective of this TQM. So that is internal. And external क्या होता है? This external is not closely related to your organization. Is something who is going to purchase your product at some cost. उसको कुछ cost pay करना पड़ रहा है in order to get your service from your organization or company. Those externals. इस external में कौन सा आता है? Any customer आप बोल सकते हैं. Even your government can be a external customer because government needs certain services from the organization. Most of the times, if you see this nowadays, जो भी IT sectors है. So in order to जो भी पॉलिसीज़ है, कुछ गाइडलाइंस और कुछ पब्लिक सर्विस के लिए जो भी कमिटमेंट है उनका गवर्नमेंट का, वो सेटिस्फाई करने के लिए जनरली दे यूज टू डू दिस थिंग्स.
Okay, so this is all about your internal and external customers, and your TQM says that you have to focus on both customer and internal and external customers. उसमें भी internal external customer is very much essential because you will at the end you are going to satisfy this external customer. You need to realize the huge sale with good amount of profit. Okay, so that's why external कस्टमर से क्या जनरेट होता है, आइडिया जनरेट होता है, एंड यू विल गेट अ सर्टेन इनपुट्स फॉर योर क्वालिटी इंप्रूवमेंट on continuous basis. Effective third one, effective involvement and utilization of entire workforce, right? So you need to motivate or you need to develop certain training skill sets in each and every workforce according to their एलिजिबिलिटी और देयर नॉलेज. आपको क्या करना पड़ेगा, स्किल करना पड़ेगा, एंड यू नीड टू मतलब यू नीड टू इंश्योर दैट ईच एंड एवरी एम्प्लॉइज इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द क्वालिटी डेवलपमेंट प्रोसेस. ठीक है, ईच एंड एवरी वन इज रिस्पॉन्सिबल. फोर्थ वन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट. अगेन एज आई टोल्ड फ्यू मिनट्स बैक, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा. डू नॉट मतलब जनरली आजकल क्या होता है, certain industries if they are feeling that whatever profit they are achieving right now or whatever the customer satisfaction they giving right now on the current condition, it is good and they don't need to improve these things further ऐसा लगता है. but this is on only short term basis. अगर आप long term में जाओगे तो some another companies or fellows your competitor will come with competitive price, some lower cost, lower price or some better features, तो वो आपका customer grab कर सकता है. तो इसलिए आपको continuous research development करना पड़ेगा in order to improve the quality. Then fifth on treating suppliers as partners, right? Very much essential. Your quality of the product is not only depend upon your internal organization, it also depend on your suppliers, right? जो suppliers if they are not providing the quality products, एक तो लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करना चाहिए सो दैट टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल डिक्रीज. प्लस दे शुड इंश्योर द क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी भी होना चाहिए. दे शुड मतलब दिस सप्लायर you need to ensure that the suppliers are following certain management principles like TQM in their organization. मतलब if they are following TQM principles, ultimately their product will be a better quality product and you can use those product blindly आप use कर सकते हैं. So sometimes timely delivery of product is very much depend on your supplier. अगर supplier आपका सब part supply नहीं करे तो you cannot ensure timely delivery to the customer. So that's why it is very much essential to treat the suppliers as your partners and he is also a key contributor to the quality of your product. And in fact ऐसा बोला जाता है कि instead of maintaining too many suppliers, try to have a single supplier and maintain a long-term relationship with those suppliers so that you will get a quality products. And last one, establish performance measures for the process, right? So let us say if you take a decision to implement or you have implemented this any TQM principles, right? So last time किसी ने पूछा था and I have given certain answers, ठीक है? तो performance measure करना पड़ेगा. अभी performance measure करना पड़ेगा even after implementing TQM principles, whether that organization is producing any defective product, ठीक है? Whether customers are whether employees are doing their work properly or not, उनका कुछ absenteeism है और certain workers are responsible for bad quality products, वो आपको track करना पड़ेगा. और even there are certain workers who are very they are performing very highly, मतलब they are producing quality product more than their expectations, ठीक है? सो ऐसे कस्टमर को ऐसे एम्प्लॉयज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. यू हैव टू रिवॉर्ड देम. जो एब्सेंटिज्म रहता है उनको फायर करने का थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ेगा सो दैट अदर्स विल आल्सो अफेक्ट. मतलब सो दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस मेजर, मतलब विदर वी जो प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग करें विदर दैट इट इज़ कंफर्मिंग टू द डायमेंशंस, क्वालिटी एस्पेक्ट्स और नॉट, वो आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा. बिकॉज क्या होता है TQM इम्प्लीमेंट करने के बाद भी आपका प्रोडक्ट अगर क्वालिटी फीचर्स कंफर्म नहीं कर रहा है तो देन देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस TQM प्रिंसिपल्स बिकॉज दिस TQM इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट. और वहाँ पे आप बोल सकते हो कि वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस है बिकॉज लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग है, टेक्निक्स है, टूल्स आपको परचेज करना पड़ेगा, मशीन्स आपको परचेज करना पड़ेगा, वेरी कॉस्टली प्रोसेस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट TQM बेसिक अप्रोच. सो इसके बारे में मैंने डिटेल्स वहाँ पे ऑलरेडी दिया है. इफ समवन फीलिंग सर ने कुछ सिर्फ खाली कुछ स्टेटमेंट दिया है, वो एक्सप्लेनेशन क्या है, then you will face difficulty in explaining these answers, right? So कुछ बुक्स से मैंने पॉइंट्स यहाँ पे ऑलरेडी दिए. you guys can go through this all this part reference.
And if you ensure that, if you see, this purpose of TQM is always to provide a quality product or service to the customers, which will return or increase the productivity, right? So this productivity and quality terms are mutually dependent on each other. If you ensure quality, then आपका productivity increase होगा, because your workers or employees are working very efficiently, तो product का productivity increase होगा, and plus you will experience or you will leverage a large amount of sale, and in turn you will also have a loyal customers, मतलब those who will frequently buy your product. एक बार purchase किया तो उसका लाइफ टाइम खत्म होने के बाद again he will come to your organization only and he will purchase that product. So loyal customers, all these are certain purpose of your TQM. ठीक है. And very important statement, if you see this on the right corner or right bottom corner, TPM requires a cultural change. ठीक है. So ये part में ज़्यादा explanation नहीं करूँगा, because already we talked this in the previous lectures. Culture basically क्या indicate करता है? It is the way that organization is doing the business, और जो workers जो किस तरीके से काम करें. So that is nothing but your culture. मतलब if they are following, if they are that is what we can call it as a inspection, takers inspection. और जनरली क्या होता है, ओल्डर टेक्निक्स आप देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद दे यूज टू डू द इंस्पेक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट, और कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल गया तो देन दे यूज टू एलिमिनेट दैट प्रोडक्ट, और उसके ऊपर कुछ रीवर्क के लेट अस ट्राई टू ब्रिंग दैट प्रोडक्ट टू द क्वालिटी, सम एक्सेप्टेबल क्वालिटी, ऐसा होता था. बट नाउअडेज अभी क्या होता है, बिकॉज जब तक आप इंस्पेक्शन तक आओगे तब तक आपने प्रोडक्ट ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड करके रखा, राइट? ऑलरेडी प्रोडक्ट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड, यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट, उसमें अपने कॉस्ट पे किया, राइट? तो एक बार प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद इंस्पेक्ट करके आप डिफेक्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, तो देन देयर इज़ नो मीनिंग. मतलब क्या होता है, अगर रीवर्क के लिए पैसा जाएगा वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा. देन अगेन समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि रीवर्किंग के लिए जो कॉस्ट आता है, इट मे बी मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट, ऐसे भी कुछ सीन्स पिक्चर में आता है. ठीक है. Then in that case, what is important, you need to take a step at the beginning of the product manufacturing itself. You need to decide, you need to improve the quality improvement techniques to ensure the quality product. तो वहाँ पे mass inspection जो रहता है end में, वो आप avoid कर सकते हो. So that is one sort of culture, right? So people are taking very easily, मतलब lenient time वहाँ पे, they are not making efficient utilization of time and resources, ऐसा कुछ रहता है due to the lack of certain motivation और inspiration, और कुछ जो traditionally follow हो रहा है वैसे. So those culture आपको change करना पड़ेगा, right? So in this bottom मैंने एक table में यहाँ पे दिया already previous state of working and the present state of working. So this shift from the older traditional to the present way, that is nothing but your cultural change, and it should happen for the successful implementation of your TQM, right? अगर ये चीज़ें नहीं होगा तो TQM उसके बाद उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी you will go on producing the defective product. So that is one important aspect. ठीक है. बिकॉज ऐसे स्टेटमेंट्स मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज जो भी आपका फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर रहेगा, इन दैट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जस्टिफाई TQM रिक्वायर्स अ कल्चरल चेंज. सो यू नीड टू फोकस, एक वन पैराग्राफ में आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, ट्रीटिंग सप्लायर, यू नीड टू ट्रीट सप्लायर्स एज योर ओन पार्टनर्स इन ऑर्डर टू इंश्योर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM. जस्टिफाई, तो जस्टिफाई करना पड़ेगी 2-3 लाइन में. सो 2-3 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन रहता है. ठीक. सर यस, गो इट. सर वो जो वाइट टेबल है उसमें बेसिकली जो TQM वाला पार्ट है दैट शुड बी फॉलोड अकॉर्डिंग टू द करंट नीड, राइट? नहीं, जो भी TQM में प्रिंसिपल, TQM इज बेस्ड ऑन व्हाट, जो आपको ट्रेडिशनल TQM अगर आप डेफिनेशन आप देखोगे, TQM एम्स टू चेंज द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस. सो ट्रेडिशनल में क्या होता था, इफ यू सी दिस फ्यू पॉइंट्स, फर्स्ट प्रीवियस जो ओल्डर टेक्नोलॉजी वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है. अभी प्रोडक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या था, ओल्डर टेक्नोलॉजी में इतना सोशल मीडिया जो भी IT सेक्टर का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था. पीपल वेर नॉट अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट, और इवन देर आर वेरी फ्यू कॉम्पिटिटर्स. इवन कॉम्पिटिटर नहीं था, कुछ प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज थे, कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट थे. सो दे विल गो ऑन प्रोड्यूसिंग दिस कंपोनेंट विदाउट टेकिंग कस्टमर इनटू केयर. मतलब जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते जाएंगे, कस्टमर के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, दे यूज टू परचेज दिस प्रोडक्ट. ठीक है. तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी था. बट नाउ डेज अभी देखोगे तो मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है. जो प्रोडक्ट आप सेल करो, सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है विद सम एडेड फीचर्स, सम लो कॉस्ट, सम हाई क्वालिटी, ऐसे
कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है, राइट। सो प्रोडक्ट डेवलप करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू थिंक ऑन द कस्टमर, कस्टमर की क्या ज़रूरत है, व्हाट ही वांट्स, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट ही डिजर्व। तो उसके हिसाब से आपको वो नीड आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस नीड को आपको प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करना पड़ेगा। देन वो प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद यू नीड टू एस्टेब्लिश अ गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर, बिकॉज क्योंकि कस्टमर के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर आपका रिलेशनशिप कस्टमर के साथ अच्छा रहेगा तो देन कस्टमर इज विलिंग टू परचेस योर प्रोडक्ट, सो दैट इज कस्टमाइज प्रोडक्ट बोल सकते। बट अर्लियर प्रोडक्ट में क्या होता था, कस्टमर के बारे में सोचता ही नहीं था। मतलब जो भी प्रोडक्ट डिजाइन करता था दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में, जो डिजाइनर रहेगा उसका खुद का प्रोडक्ट रहेगा, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। दैट इज वन कल्चरल चेंज दैट शुड हैपन। सिमिलरली वैसे बोल सकता है कि अर्लियर कंडीशन में शॉर्ट टर्म है कि सपोज इमीडिएटली 1 ईयर में मेरे पास कितना डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा एंड आई विल मीट द डिमांड। बट यू नीड टू थिंक ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए क्या होगा, शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट मीट करने के लिए आप यू विल परचेज सर्टन मशीन्स और सर्टन किसके एम्प्लॉयज़ आप एक हायर करोगे, बट द एम्प्लॉयज़ मे नॉट बी दैट मच स्किल्ड एम्प्लॉयज़ नहीं रहेंगे। और जो भी अपने इक्विपमेंट परचेज किया इतना हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इक्विपमेंट नहीं रहेंगे, बिकॉज आपका गोल क्या है, शॉर्ट टर्म में आपको मैनेज करना है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में पैसा अरेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। सो दो दैट काइंड ऑफ डिफेक्ट्स विल अराइज। सो इसके लिए आपको टीक्यू में क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म, ठीक है। एक आधा इक्विपमेंट आप परचेस कर रहे हो तो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो व्हाट काइंड ऑफ एडिशनल फंक्शन दैट इक्विपमेंट इज परफॉर्मिंग, क्या क्या उसके साथ फीचर्स है वो सब देखे, और इवन फाइल हायरिंग द एम्प्लॉयज़ उसके पास स्किल सेट्स क्या क्या है, हाउ इज क्वालिफाइड, वो सब आपको देखना पड़ेगा। दैट इज लॉन्ग टर्म बेसिस। और इवन जब इंफ्रास्ट्रक्चर आप एस्टेब्लिश करोगे यू नीड टू थिंक फॉर 5 to 6 years। तो 5 साल के बाद, क्योंकि ऐसा नहीं है जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप किया नेक्स्ट टाइम आपके पास उसमें बिल्डिंग का कुछ मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है, उसके जो भी शॉप फ्लोर एक्टिविटीज़ है और कुछ, देन आपको इमीडिएटली उसको सेल करना पड़ेगा कि इट विल लीड टू द लॉस ऑफ सेल्स होगा। सो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग। एंड अगेन अर्लियर में प्रिवेंशन इज द बेसिक प्रिंसिपल इन टीक्यूएम। तो बट ओल्डर स्टेट में क्या होता था, आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट डिटेक्ट करना पड़ता था, दैट इज आफ्टर द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या एक्शंस लेना चाहिए, दोज आर टेकन एट द बिगिनिंग स्टेज इटसेल्फ, सो दैट आपको बाद में ज़्यादा इंस्पेक्शन करना नहीं पड़ेगा। सो दीज आर फ्यू थिंग्स, मेनी थिंग्स इवन इन आर डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन, यू जस्ट गो थ्रू दिस पार्ट, यू विल कम टू नो। इज इट क्लियर गाइस? और एग्जाम में Yes. इतना सब Yes, sir. लिखने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है, स्टेटमेंट जस्टिफाई करना है तो 1 or 2 प्रोडक्ट ओरिएंटेड, शॉर्ट टर्म, क्वालिटी कंट्रोल, परवेशन, ऐसे 2-3 प्राइस। और नाउडेज कॉम्पिटिटिव प्राइस, अर्लियर प्राइस ज़्यादा भी रहेगा तो कस्टमर परचेस करते थे बिकॉज ऑप्शंस नहीं था, अभी लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। तो कॉम्पिटिटिव प्राइस, कॉम्पिटिटिव मतलब लोएस्ट प्राइस होना चाहिए। सो बेसिकली हम लोग जब क्वालिटी में आंसर्स लिख रहे रहेंगे तो हमको एग्जांपल्स भी देने हैं, मतलब लाइक प्रोडक्ट, सपोज कोई प्रोडक्ट को एज एन एग्जांपल लेके। इट इज़ बेटर इफ यू गिव एग्जाम्पल्स, ठीक है। नॉट एक्सपेक्टेड बट इट इज़ बेटर टू गिव। अगर आप, क्योंकि क्या होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऐसा है, जितना आप एग्जाम्पल सर्च करोगे सो यू विल आल्सो गेट सर्टन आइडियाज अबाउट, सपोज बाद में जाके आप आगे अपनी फ्यूचर में कुछ प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, कुछ कंपनीज आप स्टार्टअप करने चाहते हो तो आल्सो इट विल हेल्प, राइट। सो जब भी कुछ कंसेप्ट वहाँ पे दिखता है उससे रिलेटेड जो प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में जो भी एग्जाम्पल्स है, मतलब जैसे मारुति सुजुकी के कुछ टेक्निक्स रहेंगे, मतलब व्हाट काइंड ऑफ फिलोसफीज दे हैव इम्प्लीमेंटेड इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ थोड़ा सा सर्च करते रहो। सो मतलब उसके प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते रहोगे, अगर उस टर्म लिखोगे तो अल्टीमेटली इट विल एड्स टू योर नॉलेज, एंड प्लस अगर उसके साथ आप आंसर लिखोगे दैट विल रिप्रेजेंट अ बेटर आंसर। एंड जब आप हाईएस्ट स्कोर करोगे, सपोज 75 में आप 70, 70, 65, 6 के पास आप आसपास स्कोर करोगे तो देन अल्टीमेटली वी लुक एट दिस पार्ट, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट ऐसा कोई एग्जाम्पल्स मेंशन किया रहेगा तो अल्टीमेटली विल गेट बेटर स्कोर फ्रॉम। सर ये तो लाइक रियल लाइफ एग्जांपल है, लाइक व्हाट इफ वी क्रिएट अ एग्जांपल ऑफ आवर ओन, तो मतलब यस, वैलिड रहेगा वो? हाँ यस, रियल लाइफ एग्जाम्पल, कोई भी रियल लाइफ एग्जाम्पल वैलिड है, व्हाई नॉट। नहीं, कोई भी सपोज मैं ऐसा लिखता हूँ, अ प्रोडक्ट XYZ वाज इनिशियली सोल्ड एट रुपीज 200 फॉर अ कंपनी A, बट नाउ कंपनी B सेम प्रोडक्ट इज सेलिंग एट 180 रुपीज। सो यस, लाइक मैंने खुद का क्रिएट किया ना ये। दैट इज ऑल्सो फाइन, दैट इज योर परसेप्शंस, राइट। ओनली तुमको ब्रांड, तुमने उसको नाम नहीं दिया बट सर्टेन ब्रांड यू हैव अज्यूम्ड, दैट इज ऑल्सो फाइन, नो इश्यूज। ओके, गॉट इट। ठीक है।
देन लेट अस टॉक अबाउट TQM फिलोसॉफीज. इसके ऊपर भी आपको 5-7 मार्क का कोई शॉर्ट नोट आ सकता है. अगेन जैसे TQM का जो भी अप्रोच जो भी हमने दिखाया 7, 8 और 5, 6 अप्रोचेज जो हमने लिखा है, सो दोज थिंग्स अगेन सेम आंसर आप इसमें भी लिख सकते हो, बट थोड़ा सा मतलब TQM फिलोसॉफीज में एक 90 फिलोसॉफीज आर देयर, फिलोसॉफीज हियर, सो आप मतलब सेम आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो. देयर इज मतलब इतना डिफिकल्टी नहीं है. यू कैन सी दिस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी रेस्ट विद द टॉप मैनेजमेंट, राइट. सो इंस्टेड ऑफ होल्डिंग लोअर लेवल एम्प्लॉयज, आपको टॉप मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल. दे शुड टेक अ इनिशिएटिव, दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल. देन ओनली बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम देयर, उन लोगों को इन्वेस्ट करना है इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट और क्वालिटी इंप्रूवमेंट में. सो दिस टॉप मैनेजमेंट इज होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट प्रोड्यूसिंग द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. सो क्वालिटी शुड बी कस्टमर फोकस्ड. अभी हमने लिखा है कि कस्टमाइज प्रोडक्ट होना चाहिए. देन एवरी एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल, राइट. सो मैनेजमेंट इज द टॉप मोस्ट, वो तो रिस्पॉन्सिबल रह गए, बट along with this managers every employee involvement is very much essential, because कोई भी employee बराबर से काम नहीं करेगा तो ultimately it will result in the defective product of bad quality product. So हर एक employee from each and every department of the organization, the production process and work method should be designed consciously to achieve quality conformance, right. So whatever the kind of methods or tools you are using in the, so these are philosophies. First thing जो भी है that is philosophies, these are not tools. बट फोर टॉक्स अबाउट द टेक्निक्स एंड मेथड्स, मतलब कंट्रोलिंग चार्ट रहेगा, तगुची डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट रहेगा, और एनी स्टैटिस्टिकल टूल्स रहेंगे. सो जो भी टेक्निक्स एंड टूल्स आप जितना इफेक्टिवली कंसाइजली बोला है ना, कॉन्सियसली, ठीक है, यूज़ करो, सो दैट विल आल्सो मैटर. दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिलोसॉफी. Then fifth one, quality cannot be inspected in a product, so make it. So just now we have discussed, right. So instead of focusing on inspection, mass inspection, just produce a quality, produce a quality product. Take a decisions right itself at the first time before producing the product itself. Quality should be monitored to identify problems quickly and correctly. So continuous monitoring and feedback आपको लेना पड़ेगा, right? And this feedback should be from the shop floor employees. तो कहाँ पे क्या defect आ रहा है, what kind of difficulties they are facing, and try to immediately rectify. Quickly आपको rectify करना पड़ेगा, so that you can ensure the quality product. Because जो actually product manufacture करता है, मतलब जो actually product के ऊपर काम कर रहा है, जो employees रहे, they know the better. मतलब आपकी मतलब ज़्यादा डिफेक्ट और प्रॉब्लम्स क्या होता है इन ऑर्डर टू एंश्योर द क्वालिटी, उनके पास ज़्यादा आइडियाज़ रहता है. सो एंड सर्टेन एम्प्लॉयज दे आर ड्यू टू द फियर दे विल नॉट शेयर देयर व्यूज टू द मैनेजमेंट, ठीक है. तो इसलिए क्या होता है, बिकॉज मैनेजमेंट स्ट्रेट वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कोई कोई मैनेजमेंट, इसलिए क्या होता है, फियर रहता है जॉब से निकालने का, अगर फियर उनके मन में रहता है. सो दैट्स वाई वो फिलोसफीज आपको क्या करना चाहिए, चेंज होना चाहिए. And seventh one, the organization should strive for continuous improvement. It should look for continuous improvement, should not be idle. Once proper आपने मतलब कुछ targeted सेल आपने अचीव किया, कस्टमर को सेटिस्फाई किया, तो उधर ही रुकना नहीं चाहिए आपको. अगेन ट्राई, अगेन सी व्हाट यू कैन डू अ बेटर, अगेन कितना आप कर सकते हो उसमें, वो भी आपको देखना पड़ेगा. A variety of organizational mechanism have been used to promote continuous environment, right? So जैसे मैंने incentives बोला, कुछ अवार्ड करना एम्प्लॉयज़ को, सच काइंड ऑफ कुछ ट्रेनिंग रहेगा उसके अंदर. सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू इंश्योर दोज काइंड ऑफ मैकेनिज्म, राइट. The ninth, company should work with their suppliers and extend TPM programs. Again, supplier you need to treat as a partner. So this, अगर आप फिलोसॉफी के ऊपर भी क्वेश्चन आए तो यू कैन एबल टू राइट दिस थिंग्स, और इवन अप्रोचेस पे आएगा तो एक और थोड़ा सा रिलेटिवली पार्ट यू कैन डू दिस थिंग्स, नो इशू. उसके लिए ज़्यादा जो भी डिटेल में पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया हुआ, जस्ट गो थ्रू दिस पॉइंट, राइट. देन TPM फ्रेम के ऊपर भी एक थोड़ा सा शॉर्ट नोट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 5 to 7 मार्क. सो बेसिकली इसमें क्या करना है, TQM फ्रेमवर्क, इफ यू सी दिस, इट जस्ट राइटली स्टार्ट फ्रॉम द गुरुज. These gurus are nothing but your certain philosophers, those who have developed these TQM philosophies that we have discussed in the previous slide, right? So there are 7 TQM gurus, or you can say this quality gurus बोल सकते हो. Seward, Deming, Juran, Ishikawa, Crosby, Taguchi, right? So these are the quality gurus. उन्होंने कुछ techniques develop किया और कुछ philosophies develop किया. You can see this. These gurus have developed certain philosophies, that is principles and practices. That is, these are the values which we are going to follow in your organization, so that you will ensure quality product. At the same time,
प्रिंसिपल के साथ आपके पास क्वालिटी टूल्स एंड टेक्निक्स भी होना चाहिए इन ऑर्डर टू एंश्योर प्रॉपर वैल्यूज टू द प्रोडक्ट, राइट. सो दिस टूल्स यहाँ पे दिया है बेसिकली. आईटी टूल्स रहेगा फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन, environmental management system to take care the sustainable product, quality functioning deployment और failure mode analysis. मतलब what are the different modes of failure, ये आपको study करना पड़ेगा, analyze करना पड़ेगा. And what kind of changes in the design material आप कर सकते हो in order to avoid this failure of the product in service. So that is nothing but failure mode FMEA technique, very widely used technique. Product and service liability कितना है, product maintenance management tools, statistical control charts. So these all are the your tools. And नीचे जो भी लिखा है these are the philosophies. Customer satisfaction, employee involvement, supplier partnership, these are the philosophies. These are certain values you need to follow, right? ये दोनों implement करके आपको क्या करना है, you are going to develop the products or service, and this product or services is finally delivered to the customer. एंड कस्टमर के साथ डिलीवर करने के लिए आपको प्रॉपर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपको डेवलप करना पड़ेगा, सो दैट कस्टमर्स विल बी लॉयल. लॉयल रहेंगे तो दे विल शेयर द गुड वर्ड्स और फेवरेबल वर्ड्स अबाउट योर प्रोडक्ट टू अनदर पब्लिक में शेयर करेंगे, सो दैट ज़्यादा आपका कस्टमर बेस ज़्यादा इंक्रीज होगा. प्लस एक बार वो प्रोडक्ट खत्म यूज़ करने के बाद उसका लाइफ साइकिल खत्म होने के बाद अगेन दैट सेम लॉयल कस्टमर विल कम टू यूर ऑर्गेनाइजेशन, सेम ब्रांड का प्रोडक्ट को परचेज करेगा, सो दैट यू विल, तो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दैट कस्टमर यू विल एक्सपीरियंस अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. तो कस्टमर का जो शेयर रहता है, मतलब कस्टमर इज परचेसिंग प्रोडक्ट, मतलब सम अमाउंट ऑफ हिज इनकम वो आपको क्या कर रहा है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर स्पेंड कर रहा है, राइट. सो दैट इज नोन एज योर कस्टमर शेयर टू योर ऑर्गेनाइजेशन. एंड विथ दिस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बेटर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आपको कस्टमर का जो शेयर रहता है दैट यू आर गोइंग टू इंक्रीज. Okay, so this is all the aspect of your framework. आप ये 5 to 7 मार्क के लिए आता है, आप ये डिफाइन कर सकते हो. इवन मतलब इट डिपेंड है, मतलब ये फ्रेमवर्क मतलब डिफाइंड फ्रेमवर्क है, आप कोई भी फ्रेमवर्क आप यूज़ कर सकते हो. कैन सी दिस अनदर टीकेएम फ्रेमवर्क कुछ दूसरे बुक से मुझे मिला है, राइट. यहाँ पे सर्टेन फिलोसॉफिकल एलिमेंट क्या क्या फिलोसॉफीज है, प्रॉपर लीडरशिप होना चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स, दीज आर द फिलोसॉफीज एंड दीज आर द सर्टेन टूल्स जो हमने अभी डिस्कशन किया था. आप देख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो. और इवन विदाउट क्रिएटिंग एनी फ्लो चार्ट आप ऐसे भी रैंडमली आप लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट स्टैंडर्डाइज दैट मच. Then next important aspect is quality awareness, right? अभी quality awareness is very much essential for implementation of this TKM. क्यों essential बोला गया? Because जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन और जो भी आपका कंपनी का ओनर है, मैनेजमेंट है, जब तक वो अवेयर नहीं रहेगा अबाउट द क्वालिटी रिक्वायरमेंट, तब तक वो TQM टेक्नोलॉजी क्या इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, राइट. एंड व्हेन ही इज गोइंग टू अवेयर, कब उसको अवेयर होगा? whenever he loses a market share, मतलब जो older traditional method follow करते जाएगा, he is satisfied with whatever he has right now, उसके साथ continue करेगा, तो in future he may realizes the lose market share उसका loss होगा, sales loss होगा due to the competitors which are entered into the market. तब उसको realize होगा कि quality का importance क्या है, then he will start to begin implement. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. he should be aware about the quality techniques which are being implemented in the market, then we need to take a decision. So that quality awareness is very important. Okay. Then what are the different challenges or obstacles? Because once you decide, right, एक तो क्या होता है, the management due to the lack of knowledge or awareness, he will take a decision that not to implement the TQM. That is one. तो that is उसके पास awareness is also one obstacle, but वहाँ पे TQM आप implement नहीं करें due to the awareness, lack of awareness. But कभी कभी क्या होता है, management is aware about the TQM, but if you decide to implement certain TQM techniques or principles, philosophies in the organization, तब क्या होता है, he will experience a lot of challenges which are faced by the employees रहेगा, system रहेगा, environments में कुछ difficulties और challenges सामने आता है. Because as I told, TQM is nothing but in the change in culture, और वो habit change करना बहुत difficult है. Because let us say आपको एक चाय पीने का आदत है, तो एवरी मॉर्निंग यू आर सपोज यू आर मैनेजर इन द सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और आपको टी पीने का आदत है, तो एवरी मॉर्निंग यू नीड ए टी. और जो भी आपका सबऑर्डिनेट रहेगा, आपका जो भी रहेगा वहाँ पे गार्ड, उसको आप टी लाने के लिए बोलते हैं, राइट. सो एवरी मॉर्निंग यू विल गेट ए टी. आपका ये क्या होगा, दिस इज़ अ हैबिट, यू कैन से इट इज़ अ कल्चर ऑफ इंडिविजुअल. तो आपको टी पीने का कल्चर तुम्हारे पास है, बट वो टी
टी से आपको कॉफ़ी से शिफ्ट करना और ग्रीन टी से शिफ्ट करना है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट विल नॉट हैपन इन 1 or 2 days। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब नेक्स्ट आपको जो भी सर्वर रहेगा उसको बोला कि आपको बोलना पड़ेगा कि टुडे आई नीड ग्रीन टी इंस्टेड ऑफ दिस टी और आई नीड अ कॉफ़ी, तो एक दिन वो ला के देगा, नेक्स्ट दिन भी वो फिर से टी लेके आएगा, बट आपको फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सजेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं मुझे आज टी नहीं चाहिए, आज ग्रीन टी चाहिए। तो ऐसे आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, आपका कल्चर चेंज होगा, राइट। एंड आफ्टर फ्यू डेज और जो भी सर्वर रहेगा उसको ऑटोमेटिकली रियलाइज होगी कि साहब ने टी पीना छोड़ दिया है, ही नीड्स ओनली ग्रीन टी, तो डेली ग्रीन टी लेके आएगा विदाउट यूर asking you, right? So that kind of cultural change होना बहुत difficult है and it takes a lot of time. So वहाँ पे बोला है कि there are certain challenges वहाँ पे there. One is lack of management commitment. So अगर management itself is not committed towards the implementation of this TQM, मतलब he is not providing the proper resources, नहीं provide कर रहा है और encourage नहीं कर रहा है, resources नहीं दे रहा और कुछ फंडिंग नहीं दे रहा है फॉर, और कुछ नए मशीन्स इक्विपमेंट एडवांस नहीं परचेज कर रहा है, तो देन अल्टीमेटली और जो भी एम्प्लॉयज़ रहेंगे दे विल बी डिससेटिस्फाइड एंड दे वोंट गो फॉर दिस टिकिंग थिंग, दे विल रिजेक्ट, ठीक है। देन इनएबिलिटी टू चेंज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, दैट इज व्हाट आई आस्क्ड जस्ट नाउ। Then improper planning, right? Unless and until you do a proper planning, it is very difficult to implement the TQM. तो proper planning आपके पास होना चाहिए। प्लानिंग मतलब कौन सा टेक्निक्स आपको टेक्निक्स डिसाइड करना पड़ेगा, टूल्स फिलोसॉफीज, मतलब एट ए टाइम सभी टेक्निक्स टूल्स फिलोसॉफीज आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, राइट। सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। lack of continuous training and education, because TQM needs most important training and education, because जो भी अवेलेबल एम्प्लॉयज़ है उतने स्किल सेट नहीं रहते, जो भी TQM इज़ न्यू थिंग्स उसके ऊपर आपको एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, सो दैट इज़ वन पार्ट। Then incompatible organization structure and isolated individual of department. As I told, isolated मतलब all the departments of the organizations are working individually, right? So मतलब ऐसा एक तो तुम्हारे डिपार्टमेंट का काम है, सेल्स वाला देखेगा तो सेल्स मुझे कुछ लेना देना नहीं दूसरे डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज जैसे सेल्स डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, वैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस का भी इंपॉर्टेंट है, एंड एवरी वन शुड असिस्ट देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू डेवलपमेंट। सो यू नीड टू चेंज दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो ओरिजिनली था आपको ये चेंज करना पड़ेगा। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज। ineffective measurement techniques and lack of access to data and result, right? So TQM के लिए आपको market research करना पड़ेगा, you need a lot of data, उसका analysis करना पड़ेगा, और वो customer needs जो आप identify करेंगे through market research, और उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए you need टेक्निक्स इक्विपमेंट और सभी चीज़ें। अगर ये इनफेक्टिव रहेंगे, इनफेक्टिव टूल्स एंड टेक्निक्स आप चूज करें तो देन अल्टीमेटली दैट फेसेस प्रॉब्लम और इट क्रिएट अ सर्टेन ऑब्जेक्शन। यस गो इट सर 56 हो गया, जस्ट रिमाइंडिंग सर। हाँ यस, इतना पार्ट कवर कर देता हूँ, 2-3 श्योर पार्ट, सर। ठीक है। देन फोर्थ वन, पेइंग inadequate attention to internal and customer is, as I told internal customer ऑलरेडी मैंने डिस्टिंग्विश किया है। सो यू नीड टू लुक एट, अर्लियर क्या होता था जनरली एक्सटर्नल कस्टमर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रहता था, राइट। सो एक्सटर्नल को भी देखना पड़ेगा, मतलब सप्लायर्स को देखना पड़ेगा, जो भी आपके शेयर होल्डर्स है, बिकॉज शेयर होल्डर का मेजर रोल क्या है, दे आर उसका जो भी इनकम है दैट आर शेयरिंग विथ योर कंपनीज, राइट, दे आर परचेसिंग सम शेयर्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म टू रेज द फंड। जब इनिशियली कंपनी स्टार्टअप में रहता है तो इट नीड्स अ फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन सब एस्टेब्लिश करने के लिए फंड चाहिए, एंड दैट इज रेज थ्रू द शेयर होल्डर्स। तो कंपनी कुछ शेयर उसको सेल करता है शेयर होल्डर को, तो वाट एवर द आफ्टर जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद प्रॉफिट रियलाइज करने के बाद जो भी प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट का थोड़ा सा पोर्शन क्या करता है, जो कंपनी विल शेयर विद दिस शेयर होल्डर्स इन रिटर्न। सो दैट इज वे। तो शेयर होल्डर अगर ज़्यादा अमाउंट आपके पास पे कर रहा है तो शेयर कर रहा है तो देन अल्टीमेटली बेटर आप इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर सकते हो। सो दैट इज प्लस सप्लायर को पार्टनर के साथ ट्रीट करना पड़ेगा जैसे पार्टनर्स, तो ऑल दोज थिंग्स विल कम इनटू दिस पार्ट। पेइंग प्रॉपर एडिक्वेट अटेंशन, अगर वो अटेंशन जो एडिक्वेट रहेगा तो देयर इज ऑब्स्टेकल। देन एनएडिक्वेट यूज़ ऑफ एम्पावरमेंट एंड टीम वर्क, जो भी आपको कस्टमर जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको एम्पावर करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू चेंज, मतलब जो जैसे चल रहा है चलने दो, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करने का, अल्टीमेटली दे विल रजिस्ट, ठीक है। दे डोंट वर्क प्रॉपरली इन द टीम, असिस्ट नहीं करेंगे, वो सब चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देखना पड़ेगा, मतलब दिस आर द बैरियर्स इन द सक्सेसफुल। तो एम्प्लॉयज़ को आपको
you have to take the opinions from the employees. तो कॉलेज आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है वो एम्प्लॉय के साथ शेयर करना पड़ेगा, पर्पज शेयर करना पड़ेगा. You need to agree with the employment. Employees should agree with your techniques and tools. Then you will get a successful implementation of this TQM. Then failure to continually improve, right? So even after TQM implementation, कभी कभी ऐसा देखा जाता है you are going to produce defective products because हो सकता है. So you need to track. तो continuously feedback लेना पड़ेगा whether this TQM techniques and philosophies is ensuring the quality product or not. So वो जो भी root causes रहेंगे वो आपको track करना पड़ेगा. You need to rectify very quickly. So that is failure to continuously improve. So that is all about the different challenges. उसके बारे में भी मैं पूरा proper notes आपको दे दूँगा. You can have this. ठीक है. So these are TQM benefits है, ये मैं explanation नहीं करूँगा. You can see this जो भी चीज़ें मैंने अभी तक explanation किया. Improved quality, you can employees का participation ज़्यादा रहेगा because teamwork ज़्यादा है. Employees are satisfied, happy with your philosophies and techniques, और they are inspired, motivated है. तो ultimately उनका involvement ज़्यादा है. Working relation, there is a good working relation between the different departments of the organization and with the top management. Customers are satisfied because you are producing highly quality product. Employees are satisfied because उनको आप रिवार्ड दे रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं, और प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं. ये वर्किंग एनवायरनमेंट जो भी रहेगा, वट एवर द टूल्स टेक्निक आप यूज़ करें, दोज आर ईजीएस्ट, प्रॉपर आपने ट्रेनिंग किया. सो एम्प्लॉय के मन में आपने ट्रस्ट क्रिएट किया रिगार्डिंग दिस TQM प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स. देन अल्टीमेटली एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड. तो इफ दे आर सेटिस्फाइड, क्वालिटी प्रोडक्ट है तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज रहेगा. ड्यू टू हाई क्वालिटी डिमांड ज़्यादा रहेगा. डिमांड मीट करने के लिए आप अल्टीमेटली आपका प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, दैट इज प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा. देर इज़ अ प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट चैनल्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो भी चैनल रहेगा. प्रॉफिटेबिलिटी, अल्टीमेटली लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन इंक्रीज. एंड मार्केट शेयर मतलब more and more customers are willing to invest purchase your product, that is market share आपका increase करेगा. प्लस जो भी शेयर होल्डर का शेयर, बिकॉज आपका कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द जो भी स्टेक होल्डर्स दे विल परचेज योर कंपनी शेयर. तो कंपनी के साथ ज़्यादा पैसा रेज होगा, फिर से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेटर वे ऑफ डूइंग द बिजनेस, ये सभी चीज़ें दिस आर ऑल आर द TQM बेनिफिट्स. ठीक है. एंड देयर आफ्टर दिस कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ क्वालिटी गुरुज है, 7-8 क्वालिटी गुरुज है. दैट डिटेल पोर्शन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. Thank you. Any doubts so far? कुछ doubts है guys? Otherwise, No, sir. Okay, right. Let me take an attendance. Okay, guys, I had taken your attendance. You guys are free to leave the meeting. Thank you, guys, once again. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, guys.